fundamental element of weather and climate, atmospheric temperature. What is atmospheric temperature? It's amount of heat that is present in atmosphere. When I talk about amount of heat present in atmosphere, it is related to all the layers of atmosphere, but as the element of weather and climate, by default it will be related to amount of heat in troposphere, which is the weather layer of our atmosphere, है ना? So it relates to troposphere. As soon as we talk about atmospheric temperature, जो एक added factor मुझे add करना चाहिए with temperature, is planet Earth generating its own heat to create out the atmospheric temperature? नहीं, it is directly dependent on insolation. Insolation, the incoming solar radiation, varies in its amount as received by the Earth system. When I say Earth system, I am including both. I am including layers of atmosphere and surface of the Earth. Our atmospheric composition is such that it is incoming solar radiation that is principally received by Earth's surface. सरफेस जैसे हीट अप होता है उसी से फिर एयर कॉलम हीट अप होता है. सो नो वंडर्स मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एनी स्टेशन इज मेजर्ड एट 3 PM, है ना. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द डिटरमाइनर ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इट इज इंसोलेशन. इनकमिंग सोलर रेडिएशन आप कितना रिसीव करोगे, दैट विल डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड दैट ऑटोमेटिकली इज डिपेंडेंट ऑन सीजन. So when I talk about season, I very simply say season cycle को apply कर दो. Summers when is there in northern hemisphere. When we talk about summers, spring equinox से लेकर autumn equinox तक, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक northern hemisphere में summers है. Automatically northern hemisphere will be experiencing or receiving more insolation than southern hemisphere. And it is angle of sun rays. When I refer angle of sun ray, I actually want to show this. अब यहां बहुत ध्यान से देखेंगे, एंगल ऑफ सन रे एज रिसीव्ड बाय प्लैनेट अर्थ. तो एंगल ऑफ सन रेज को आप दो प्रिंसिपल कैटेगरी में डिवाइड करते हो, डायरेक्ट सन रेज एंड स्लांटिंग सन रेज, जिनको आप लो एंगल सन रेज भी बोल सकते हो, है ना. सो डायरेक्ट सन रेज फॉल्स इन लोअर लैटिट्यूड. लोअर लैटिट्यूड दस टेंड्स टू एक्सपीरियंस हायर इंसोलेशन कंपेयर्ड टू हायर लैटिट्यूड. इसलिए जब आप फ्रिजिड जोन की बात करते हो, आप कहते हो कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ, है ना. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट टेम्परेट जोन, यू से इट इज मॉडरेट टेम्परेचर जोन. एंड ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन इज बेसिकली द वार्मेस्ट जोन ऑफ द planet Earth. तो आप इसको इस तरह से relate out कर सकते हो, because when I take up reference of this element, I simply want to take up the reference of lower latitude are receiving the sun rays that are traveling less distance and is diffusing less. ऐसे करके समझाते हैं. When I take reference of like this, if this is my source, ये मेरा sun है, मान लीजिए ये मेरा sun है, और हम यहाँ सरफेस ऑफ द अर्थ ड्रॉ करके एक डायरेक्ट सन रे को ड्रॉ कर दें और एक स्लांटिंग सन रे को ड्रॉ कर दें, तो जो डायरेक्ट सन रे है, यू कैन नोटिस वेरी क्लियरली दैट इट इज ट्रैवलिंग लेस एंड इट इज डिफ्यूजिंग लेस, है ना. और जो स्लांटिंग सन रेज हैं, स्लांटिंग, वो ट्रैवल भी ज्यादा कर रही हैं और वो डिफ्यूज भी ज्यादा करती हैं. तो बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग मोर एंड डिफ्यूजिंग मोर, ये ऑटोमेटिकली लेस इंसोलेशन के साथ रिलेट करेगा. आई थिंक इट मेक सेंस. So when I talk about atmospheric temperature, the amount of heat present in atmosphere related to insolation, higher insolation will give me higher temperature, no denial. Insolation का pattern determiner है, number one, the duration of day, that is season cycle, and number two, the angle of the sun ray as received by earth system. When I take reference of this and try to add on रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो मेरा ज्यादा प्रोमिनेंट फोकस है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, रेंज ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, को आप दो तरीके से मेजर करते हो.
एक डायरनल या डेली कहा जाता है और एक एनुअल कहा जाता है। डायरनल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ गिवन स्टेशन, और एनुअल को आप एसोसिएट कर देते हो किसके साथ? द मीन टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। हम ग्लोबल स्टडी में, क्लाइमेटोलॉजी में एनुअल टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं जो रिलेट करता है लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड से कैसे? विद इंक्रीज इन साइन ऑफ लैटिट्यूड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। मतलब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मुझे ज्यादा हाई मिलेगा टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड कंपेयर टू इक्वेटर। Distance from the sea, we all are aware of, maritime climate is always equatable. Ocean currents and wind, it is just adding to the sea influence further. तो ये भी आपको maritime influence के साथ associate कर सकते हैं। That is the reason कुछ multiple choice questions पूछे गए हैं prelims में इस तरीके से। We have got maximum annual range of temperature identified in the continental interiors of the Arctic Circle. कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स में आएगा क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, नियर आर्कटिक सर्कल आएगा बिकॉज साइन ऑफ द लैटिट्यूड है। जब आप इस रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं एंड यू टेक इनटू रेफरेंस लैटिट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल एक्सप्रेशन दैट कम्स इनटू अकाउंट एंड आई वांट टू गो देयर। इट इज कॉल्ड टेम्परेचर एनोमली। Temperature anomaly is variation, deviation of temperature between land and water. अब इसको आप कैसे समझते हैं? आप इसको समझते हैं लैंड एंड वाटर के डिफरेंशियल रेट ऑफ हीटिंग के साथ। अब इसको कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुने। जब भी हम लैंड और वाटर को किसी एक लैटिट्यूड पर जज कर ले, मान लीजिए हम मिड लैटिट्यूड में हैं, एंगल ऑफ सन रेज सेम पड़ रही है, बट water will always maintain temperature. Water tends to maintain temperature because it has got higher specific heat. It is translucent in nature and it has got mobility. तो किसी भी गिवन लैटिट्यूड में जब भी आप लैंड वाटर को कंपेयर करोगे, वाटर विल ऑलवेज मेंटेन इट्स टेम्परेचर एंड लैंड विल शो दी एनोमली। इसलिए जब भी आप टेम्परेचर एनोमली को जज करते हैं, आप क्या करते हैं? थियोरेटिकली आप ये करते हो, टेम्परेचर एनोमली डेविएशन फ्रॉम द लैटिट्यूडनल एवरेज। So what we do is we take into account the temperature anomaly का पैटर्न। बहुत बेसिक पॉइंट पर ये क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद आप इसमें टेक्निकल डिटेल्स को ऐड कर दो। तो हमने क्या कर दिया, हमने टेम्परेचर एनोमली के दो टाइप्स बता दिए, पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमली एंड नेगेटिव टेम्परेचर एनोमली। आई एम राइटिंग TA इन बोथ द केसेस। सो यू आर प्लॉटिंग टेम्परेचर एनोमली है एंड हेयर यू आर प्लॉटिंग लैटिट्यूड्स। तो हम कौन कौन से लैटिट्यूड्स को प्लॉट करना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू कीप इट सिंपल। सो वी आर प्लॉटिंग लोअर लैटिट्यूड, सो 0 डिग्री से 45 डिग्रीज नॉर्थ साउथ ले लेते हैं एंड 45 डिग्री से 90 डिग्रीज नॉर्थ साउथ ले लेते हैं। दिस इज हाउ वी आर टेकिंग अप द डिविजन ऑफ इट, राइट? ठीक है। अच्छा, अब इसमें जज करो, क्योंकि वाटर हमेशा मेंटेन करेगा और लैंड हमेशा एक्सट्रीम शो करेगा। तो जब आप लोअर लैटिट्यूड पर हो तो लैंड मास पर होगा पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमली। हाइपोथेटिकली बिलीव कर लेते हैं कि हम यहाँ इंडिया को लेकर चल रहे हैं, और नेबरिंग वाटर बॉडी में क्या होगा, नेगेटिव टेम्परेचर एनोमली। तो वाटर विल बी कोल्डर दैन लैंड। मान लो कि हमने अरेबियन सी को सेलेक्ट कर लिया यहाँ। So when land mass of India will be warmer, Arabian Sea will be comparatively colder. Higher latitude में उल्टी बात, जब आप higher latitude is equal to low temperature की बात करते हो तो land will always be showing negative temperature anomaly। मान लीजिए कि हम यहाँ पर साइबेरिया का केस ले लेते हैं, और neighboring water body, let's take I write water first here,
water will be comparatively warmer, sea of a coast. आ रही है बात समझ में? टेम्परेचर एनोमली को आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो, माइंड इट, इट्स थियरिटिकल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकलिटी में आपको क्या ऐड करना पड़ता है? सीजन साइकिल. और जैसे ही आप सीजन साइकिल को ऐड करेंगे आपको एसोसिएशन ले लेना पड़ेगा टेम्परेचर एनोमली का. कहने का मतलब क्या? बहुत ध्यान से सुनो. कहने का मतलब ये कि इंडियन लैंड मास पर पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमली सिर्फ समर्स में होती है. विंटर्स में इंडिया विल बी कोल्डर देन अरेबियन सी. सो व्हेन यू ट्राई टू लर्न टेम्परेचर एनोमली, एक और पेज ऐड कर देते हैं, एंड ट्राई टू अप्लाई ऑन दी टेम्परेचर एनोमली पैटर्न. तो इसके लिए सबसे पहले हमने बनाया एक जियोइड. जियोइड को बनाकर उसमें फटाफट से लैटिट्यूड्स को डिमार्केट कर दिया. तो मान लो कि ये मेरा हुआ इक्वेटोरियल बेल्ट, 10 डिग्रीज नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक को मार्क करा, और ये हुआ मेरा फ्रिजिड बेल्ट, 80 डिग्री से 90 डिग्रीज नॉर्थ, एंड सेम आई एम रिपीटिंग फॉर सदर्न हेमिस्फेयर. ठीक हुआ? सिर्फ इन्हीं दोनों जगह पर, माने एक इक्वेटोरियल बेल्ट, लेट मी लेबल इट, वन इज इक्वेटोरियल बेल्ट and 2 is polar zone. Don't take it as frigid zone. Polar, frigid zone तो 60 डिग्री से शुरू होता है. There is no season cycle. तो सीजन साइकिल कहां पर वैलिड हो गया? सीजन साइकिल वैलिड हो गया 10 डिग्रीज टू 80 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ. तो जब समर्स होगा तो लैंड पर कौन सा टेम्परेचर एनोमली होगा? पॉजिटिव. नेबरिंग वाटर पर कौन सा टेम्परेचर एनोमली होगा? नेगेटिव. दिस इज हाउ यू ट्राई टू जस्टिफाई एनोमली ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स पैटर्न, बिकॉज सीजन साइकिल इज रियल for major part of the world, not for entire world for sure. And when you try to chart out the pattern of temperature anomaly, adding the page one more time, you take into reference isothermal pattern, and isothermal pattern shows bends at shoreline that projects temperature anomaly. Bends is dependent on relief transition and prevailing season. एग्जाम्पल बताते हैं, सोच कर देखना. विंटर isotherm when will be traced from land to water. winter, land पर तो negative temperature anomaly होगा. traced from land to water will always bend towards pole. and summer isotherm traced from land to water will always bend towards equator. इससे ज्यादा आसान pattern of temperature judge नहीं किया जा सकता. Take reference of this video and try to do justice with the fundamental element of weather and climate, atmospheric temperature, at least temperature anomaly. Bye-bye from my side. Happy learning.